Hi, I'm Shivani. Today's lesson is Indigo, a very important lesson. Let's quickly revise the important questions and their answers. Watch the video till the end. I'm sure you'll find it useful. So let's get started. First question. Who was Rajkumar Shukla? How do you know that he was a very determined person? Rajkumar Shukla was a poor, illiterate peasant from Bihar. He went to Lucknow to meet Gandhiji to complain about the injustice done to the farmers of Bihar due to the landlord system there. He was a very determined or a resolute person. He had to wait for weeks to meet Gandhiji. He was determined to take Gandhiji to Champaran. He followed Gandhiji to Kanpur, Ahmedabad, and other places wherever Gandhiji went. He did not leave his side. Impressed by his tenacity or determination, Gandhiji asked him to meet him at Calcutta and take him to Champaran from there. तो राजकुमार शुक्ला एक बहुत गरीब फार्मर थे और वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे. वो गांधी जी को मिलने लखनऊ गए, पर गांधी जी के पास समय नहीं था, तो वो गांधी जी के साथ हर जगह गए. जहाँ भी गांधी जी गए वहाँ गए, क्योंकि वो गांधी जी को चंपारण लाना चाहते थे. और गांधी जी ने जब देखा कि वो कितने रेजोल्यूट और डिटर्मिन पर्सन हैं, तो वो बड़े इम्प्रेस हो गए. उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे कलकत्ता में मिलना और वहाँ से मुझे चंपारण ले जाना. What was the 15% arrangement in Champaran? Or what did the sharecroppers pay as rent to the landlords? तो sharecroppers कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं जो कि लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन में फसल उगाते हैं और उन्हें उसका किराया देना होता है. उसका एक हिस्सा, फसल का एक हिस्सा उन्हें लैंडलॉर्ड्स को किराया देना होता है. तो चंपारण के फार्मर्स को 15% अरेंजमेंट फॉलो करना पड़ता था. तो ये 15% अरेंजमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट अरेंजमेंट, द फार्मर्स ऑफ चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स. दे ग्रू क्रॉप्स ऑन द फील्ड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. इट वॉज मैंडेटरी फॉर देम टू ग्रो indigo on 15% of the land and give it or surrender it as rent to the British landlords. तो उनके लिए कंपल्सरी था कि वो 15% लैंड पर इंडिगो उगाए और इंडिगो की फसल को वो रेंट के हिसाब से लैंडलॉर्ड्स को दे दे. ये कंपल्सरी था उनके ऊपर. Why did the British landlords want to release the sharecroppers from the 15% arrangement and force them to pay compensation? पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अब फार्मर्स को इस 15% अरेंजमेंट से मुक्त करना चाहते थे और इसके बदले में ज़बरदस्ती उनसे कंपनसेशन लेना चाहते थे. So why was it? The landlords realized that after the development of synthetic indigo by Germany, the prices of natural indigo would fall in the market. So they decided to release the sharecroppers from the 15% arrangement, but force them to pay a compensation. तो जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था जो कि बहुत सस्ता था. तो लैंडलॉर्ड्स को जब ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनका इंडिगो कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि किसानों को वो इस 15% अरेंजमेंट से मुक्त कर देंगे, क्योंकि अब वो इंडिगो फसल नहीं उगाना चाहते थे. पर इसके बदले में किसानों को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि उन्होंने कंपल्सरी कर दिया. Cite an incident that tells about the rigid caste system prevalent at that time. आप एक घटना बताइए जिससे कि हमें पता चलता है कि उस समय बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम समाज में था. शुक्ला took Gandhiji to the house of a lawyer named Rajendra Prasad at Patna,
who was out of town at that time. The servants thought Gandhiji was another sharecropper like Shukla, so they did not allow him inside the house. He stayed on the grounds and was not allowed to draw water from the well as they considered him untouchable. तो चंपारण जाते टाइम पटना में शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गए, जो उस समय एक लॉयर थे. बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, पर उस समय वो लॉयर थे. पर उस समय राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे नहीं थे. तो घर के सर्वेंट्स ने गांधी जी को अनटचेबल सोचा और उन्हें घर में घुसने नहीं दिया, और गांधी जी को बाहर ग्राउंड्स में ही रहना पड़ा. उन्हें कुएं से पानी निकालने की भी इजाज़त नहीं थी. Why did Gandhiji decide to go to Muzaffarpur? What was Gandhiji's reaction towards the lawyers there? Gandhiji went to Muzaffarpur, which was on the way to Champaran, to meet the lawyers there to get a better understanding of the matter, as Rajkumar Shukla could not give him complete information regarding the whole thing. Gandhiji scolded the lawyers over there for collecting big fees from the poor sharecroppers to represent their case in the court. तो रास्ते में ही मुजफ्फरपुर पड़ता था, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहाँ पर लॉयर्स से डिस्कस करेंगे केस के बारे में, क्योंकि राजकुमार शुक्ला प्रॉपरली उनको डिटेल्स नहीं बता पाए थे. वहाँ जब वो पहुँचे, उन्हें पता चला कि लॉयर्स शेयर क्रॉपर्स से एक हैवी फीस चार्ज करते हैं. तो उन्होंने लॉयर्स को बहुत डांटा कि पुअर शेयर क्रॉपर्स से वो इतना ज़्यादा फीस क्यों लेते हैं. Why didn't Gandhiji want to take the Champaran case to the law courts? गांधी जी चंपारण केस लॉ कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो कोर्ट बाहर ही, लॉ कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए, बाहर ही बातचीत करके उस केस को सेटल करें. Gandhiji felt it was important to free the farmers from fear, for they were too fear-stricken. There was no hope of getting justice against the British landlords in the law courts. तो गांधी जी ने सोचा पहले फार्मर्स को उनके डर से मुक्त कराया जाए, और लॉ कोर्ट्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ वो कभी जीत नहीं सकते हैं. When did the British officials realize that they could also be challenged by the Indians? उन्हें कब ये रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि इंडियंस भी उनको चैलेंज कर सकते हैं? When Gandhiji received a summon to appear in court, thousands of peasants demonstrated around the courthouse to show their support for Gandhiji. The British officials felt powerless and needed Gandhiji's help to control the crowd. Gandhiji readily helped them to regulate the crowd. The British realized that now they could also be challenged by the Indians. जब फार्मर्स को पता चला कि गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया है, तो वो सब वहाँ इकट्ठे हो गए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए. और ऑफिशियल्स ने ऐसा नहीं सोचा था इतना बड़ा क्राउड वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो वो उनको कंट्रोल नहीं पाए और उन्हें गांधी जी से हेल्प लेना पड़ा. और तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि अब इंडियंस भी उनको चैलेंज कर सकते हैं. Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. Explain. A case against Gandhiji was filed in the Motihari court for not following government orders. Thousands of peasants demonstrated to show their support for Gandhiji. The magistrate announced to postpone the trial till after the 2-hour recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 2 hours. Gandhiji refused. The judge released him without bail. After several days, Gandhiji was informed by the magistrate
that the lieutenant governor had dropped the case against him. This is how civil disobedience triumphed for the first time in India. सिविल डिसोबीडियंस की सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में कब जीत हुई? जब एक केस गांधी जी के अगेंस्ट फाइल किया गया मोतीहारी कोर्ट में, क्योंकि गांधी जी ने गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था। थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स, फार्मर्स वहाँ इकट्ठे हो गए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए गांधी जी के लिए। तो मजिस्ट्रेट को वो केस, वो ट्रायल 2 घंटे के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। 2 घंटे का जो रिसेस था उसके बाद वो ट्रायल शुरू करने वाले थे, परंतु गांधी जी को इतने टाइम के लिए फ्री रखने के लिए उन्होंने गांधी जी से बेल फर्निश करने को कहा। गांधी जी ने मना कर दिया, तो जज ने उन्हें बिना बेल के रिलीज़ कर दिया। और कुछ दिनों बाद गांधी जी को इन्फॉर्म किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनके अगेंस्ट में केस वापस ले लिया है। तो ये वो घटना थी जब सिविल डिसोबीडियंस पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन? गांधी जी ने कब कहा था कि बैटल ऑफ चंपारण जीत लिया गया है? द सीनियर लॉयर्स फेल्ट दैट इफ गांधी जी वेंट टू जेल they would also go back home. There will not be anything left for them to do. Gandhiji reminded them about their duties towards the sharecroppers. The lawyers realized their mistake and felt ashamed. They decided to stay back. They told Gandhiji that they were ready to go to jail with him. That was the time when Gandhiji exclaimed, "The battle of Champaran was won." तो जो सीनियर लॉयर्स गांधी जी को हेल्प करने आए थे, जब उन्हें लगा कि गांधी जी को अब जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वो भी अब घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं था। वो गांधी जी को एडवाइस करने आए थे, क्योंकि गांधी जी जेल जाने वाले थे, अब उनके पास कोई काम नहीं बचा था। पर गांधी जी ने उनसे कहा कि अगर वो चले जाएंगे तो शेयर क्रॉपर्स का जो प्रॉब्लम है उसको कौन देखेगा। लॉयर्स को अपना मिस्टेक रियलाइज़ हुआ और वो बहुत अशेम्ड भी हुए, क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी जो कि बाहर के थे और वो शेयर क्रॉपर्स के लिए कितना कर रहे थे, परंतु ये लोग जो कि बिहार के रहने वाले थे वो घर वापस जाने को तैयार थे। तो उन्हें लगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए, एंड दे फेल्ट अशेम्ड, और वो वापस रुकने को तैयार हो गए और गांधी जी के साथ जेल जाने को भी तैयार हो गए। ये वो समय था जब गांधी जी ने कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन। Why did Gandhiji agree to a settlement of 25% refund to the farmers? Gandhiji felt that it was not the amount of money that the British landlords agreed to refund to the farmers really matter. It was more important that they had agreed to surrender a part of their money to the poor farmers. Earlier they behaved like lords, and such an action could not be imagined or expected from them. This gave power to the peasants and helped them to become more confident. तो गांधी जी 25% कंपनसेशन के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो कि पहले अपने को लॉर्ड समझते थे और इंडियंस की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थे, अब वो एटलीस्ट 25% कंपनसेशन देने के लिए राजी हो गए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्हें लगा कि पेजेंट्स को इससे बहुत बड़ा साहस मिलेगा, और पैसा बड़ी बात नहीं है, पेजेंट्स को अपने डर से छुटकारा मिलेगा, वही बहुत बड़ी बात थी। How did Champaran episode prove to be a turning point in Gandhiji's life? The Champaran episode gave Gandhiji a direction to start his struggle for India's independence.
It started with getting justice for the peasants of Champaran by helping them to free themselves from fear. During this time, civil disobedience triumphed for the first time in India. It was a victory for Satyagraha which ultimately helped in gaining freedom from the British rule. तो चंपारण एपिसोड जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के जीवन में. गांधी जी को इससे एक डायरेक्शन मिला कि किस तरह वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपना स्ट्रगल शुरू करें, क्योंकि उन्हें चंपारण में जीत मिली थी. तो उन्होंने सोचा इसी तरह सत्याग्रह अपनाकर वो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ेंगे. Why do you think Gandhi ji stayed back in Champaran even after the disappearance of indigo sharecropping? Indigo sharecropping के बाद भी गांधी जी चंपारण में रह गए. गांधी जी realized the condition of health and hygiene, education and sanitation was miserable in the villages and that needed improvement. He appealed for teachers to volunteer. Several people joined him, including Mahadev Desai and Narhari Parikh. Primary schools were opened. His wife Kasturbai and son Devdas also joined him. Kasturbai taught them personal hygiene and community sanitation. He got a doctor to volunteer his services for 6 months. Basic medicines like castor oil, quinine and sulfur ointment were made available. तो गांधी जी उसके बाद भी चंपारण में रह गए, क्योंकि चंपारण की कंडीशन बहुत ख़राब थी. वहाँ के लोगों को हाइजीन और एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था. तो उन्होंने सोचा कि वहाँ भी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे. उन्होंने टीचर्स एंड डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स को गांव में बुलाया. उनकी वाइफ कस्तूरबाई और बेटा देवदास भी वहाँ आ गए और वहाँ गांव के लोगों को उन्होंने हेल्प करना शुरू किया. I've discussed almost all the important questions. Just practice them. You'll definitely do very well in the exam. Best